श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं श्रीमदाततं विघ्नन्ति ये भूरिदा जनाः। जनाः। हाँ भाई, तो हम लोग कह रहे हैं चैप्टर 13 और 14, गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण एंड द सेंटेनरी ऑफ द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। यस। तो इसकी समझी कर रहे हैं कुंडू जी। हाँ महाराज, let me start महाराज। Pranam महाराज। The article starts with the familiar invocation used by M to expound the significance of the gospel in our spiritual life. The sloka is from Gopi Gita, which is a part of Bhagavatam. O Lord, your nectar-like words stop the burning misery of afflicted souls. Your words, which the poets have sung in verse, vanquish the sins of worldly people forever. Blessed are they who hear about your vast glory. Blessed indeed are they who speak of you, and how unparalleled is their bounty. The author goes on to comment on each phrase of the verse to show how relevant are they in explaining the spirit of the gospel and how the meditation on them advance us in spiritual pursuits. Reading, thinking, and meditating on the gospel easily take us closer to the Master. Tava Kathamritam. All of us are capable of speaking, but none other than the divine incarnations can speak so sweetly as to immortalize the common soul. The words of Sri Ramakrishna gives us the knowledge of Brahman and thus bestows immortality. To dispel the doubt of Narendranath, the Master assured that God is the ocean of nectar, but no one dies by diving into it. Rather, he realizes that it is the body which is mortal, not the Atman. The gospel conveys the bold message of Vedanta to modern people. If we can absorb the substance of the gospel, all our worldly desires will be dissipated. It is not easy. Through the parable of the fishwife, Sri Ramakrishna explains how difficult it is to change the habit, and we are habituated to stick to our desires. The gospel gives us a taste of divinity and inspires to lead a God-centric life. Tapta Jivanam, that the life is burning with misery, needs no elaboration. It is a common experience. Even the happy moments of life is fraught with misery, as explained by a Vedanta teacher. It is like an exhausted traveler finding a cool shade under the hood of a poisonous cobra. The gospel carries solace and succor for suffering humanity. Kavivir Editam, eulogized by the poets. A divine incarnate inspires the society in many ways. His ideas ignite the imagination, and a flurry of activity bursts out in the field of literature, drama, music, art, and culture. Ramakrishna did not speak much, but Swami Vivekananda expounded his message of the harmony of religions throughout the world. His speeches and writings are spread over many volumes. While M recorded the gospel, Girish Chandra Ghosh wrote many plays incorporating his ideas. Without formal education, his words have simplicity and directness as they came straight from God. He was totally immersed in divinity and confident that it was beyond human endeavor to make him famous. Kalmasapaham,
destroys all kinds of sin and the fruits thereof. The gospel purifies the soul. In the worldly life, doubt, desire, pride, anger, jealousy, greed, and lust are continuously polluting the mind. The struggle against them require three types of power: power of wisdom, will, and action. The gospel develops in us a strong discriminative faculty and protect the mind from weakness and temptation. Sravana Mangalam. Hearing it is beneficial to the soul. Just like eating chili gives a burning sensation, hearing the gospel gives a blissful experience and turns the mind Godward. Srimad, beautiful. The beauty spread through the pages of the gospel are truly fascinating and irresistible. Atatam, vast and easily available. Just like God is infinite, so are his words. The pages of the gospel are full of the gems of spiritual life. It is revealed to the aspirants as per their spiritual development. It is an inexhaustible source of truth, and each subsequent reading brings new meaning. A monk said that he finished the gospel 50 times and still finding new light in it. Bhuvi grinanti ye bhurida janaha. The highest charity is in spreading the word of God to humanity. The taste of spirituality is unending bliss for the seeker. Hundreds of persons from all walks of life came to Sri Ramakrishna with their questions, and he answered the queries in simple, lucid language. He solved every problem of life because his own life was free from problems. He himself has announced how he is the most benevolent benefactor of humanity. Bhurida Jana. He said, I have cooked for you, you need only to come and eat. I am the destroyer of karma. The subject of the gospel is God and God alone. Ramakrishna was a tremendous spiritual force, and we have seen how he could transform those around with a single touch, a glance, or a word. Another aspect of Ramakrishna, as brought out by Christopher Isherwood, is his sense of humor, fun, and joy of existence. Pages after pages, we see how he makes his devotees laugh while he is explaining the difficult spiritual questions. He never turned anyone away. In the distribution of divine bliss, he made no distinction between a saint and a sinner. Mahendranath Gupta, after explaining the significance of the invocation and how it is relevant to understand the gospel, the author introduces the writer Mahendranath Gupta, who used many pseudonyms, most common being M. He was a headmaster of a school. He was having depression because of a family problem. He even planned to commit suicide. It is during this crisis that he met the divine incarnation, which changed the course of his life. He could write the gospel, which Aldous Huxley thought to be unique in the literature of hagiography due to his habit of writing diary since childhood. In addition, he was blessed with an amazing photographic memory, artistic skill, and poetic imagination. The historicity of the gospel cannot be challenged because he wrote whatever he had heard or seen personally. He meticulously documented the conversations with the details of date, time, place, and the people who were present. Sri Ramakrishna did not preach anything new. Like all the avatars, he reinterpreted the truth according to the need of the age. Because, as he told in his inimitable style,
the currency of the past regime becomes outdated with the new ruler coming in. The author reminds us that even Lord Krishna told Arjuna that he is merely repeating the same truth which got corrupted over time. According to the author, repetition may be a weakness in logic, but scriptures never tire of declaring the same truth again and again. Even M was insistent on keeping the repetitions in the gospel, as each word of the master was precious. He meditated on the notings, his diary, to recollect the exact word and recreate the background in which they were spoken. This pictorial setting with graphical description of the beautiful scenes significantly enhances the value of the book. It describes in detail the place and the attitude of the spiritual seekers who came to meet Ramakrishna. All these leave a deep impression on the reader's mind. The author goes on to describe the quality of Ramakrishna's teaching in the gospel. It is characterized by its simplicity, directness, and ease of understanding. A student of Vedanta has to prepare himself for the study by practicing sadhan chatushtaya, that is, he must possess in abundant measure discrimination, renunciation, control of the senses, and a burning desire for liberation. No such qualification is needed in following the gospel. He explains obtuse philosophical questions with homespun similes and examples drawn from the world around. To a question as how to realize God, his answer is one must have strong love for God. The degree of intensity is quantified as the combination of three attachments: those of a worldly man to his riches, a mother to her child, and a devoted wife to her husband. Thus, though the stories and examples are of Indian origin, the vivid and enchanting description has an element of universality about them. Ramakrishna's parables are positive, instructive, and inspirational. The story of the woodcutter succinctly presents why one must always strive to go forward. There is no end to spiritual bliss and illumination. The simplicity of his teachings is exemplified by the advice about meditation. There are so many alternatives. One can practice meditation in the seclusion of a forest, in the corner of a room, or in the inner chamber of one's heart. If none of them is possible, surrender to the Lord, give him the power of attorney. As an example of absolute surrender, he talks about the kitten's dependence on the mother cat. After having a glimpse of infinity, an ordinary seeker cannot come back to tell the world his experiences. But Ramakrishna was like the third man in the parable of three men who went for climbing the high wall, and he came back to tell others of the infinite bliss behind the wall. The author finished the chapter discussing the four vital questions which M asked on his second visit. In a sense, it summarizes all the spiritual quests of humanity. Ramakrishna's answer to them is straightforward and simple. All the spiritual problems of an individual are resolved through them. The first question is how to fix the mind to God. His fourfold solution is repetition of his name, holy company, at times staying in solitude, and discrimination between real and unreal. Second question, how to live in the world. He says, do your duties to the family, but remember in your heart that they are not your own, only God is your own. In this connection, he gives examples from daily life, those of a housemaid, tortoise, and about handling
a jackfruit. Third question, is it possible to see God? He says, yes, certainly. It is possible if one earnestly practices the fourfold way of the first question. The last question is, under what conditions does one see God? He talks of crying for God with intense yearning. Sincere longing is followed by the vision of God. The author closes the chapter with the episode of Purnachandra Ghosh. It shows how powerful are the words of the gospel. Purna was a devotee blessed by Sri Ramakrishna. In a fit of despondency, he wanted to kill himself. Before doing that, he opened a page from the gospel which contained the sentence, Thakur Purner Mongol Chinta Koritechen. He was so overwhelmed with gratitude that the Lord himself is thinking about his welfare. He could not commit suicide. The next chapter is the author's thoughts on the centenary of the gospel. The gospel is a series of diary entries describing the happenings of the day as noted by M. On the centenary of the first entry on 26 February 1882, the author discussed the impact of the immortal literature throughout the world. Mahendranath Gupta never could imagine that his humble recordings as presented in gospel will be so far-reaching in its spread and exert so deep an influence among the followers of Sri Ramakrishna. Shy by nature, he kept his attempt to write the book a secret and gave evasive reply to anyone asking about it. Even while describing the incidents through the pages of the gospel, he kept himself completely hidden under various pen names, so much so that many people used to ask him about the identity of different characters who are actually none other than Mahendranath Gupta himself. M did many types of errands for Sri Ramakrishna with absolute humility, love, and faith. In his relationship with M, the master also displays how much an avatar thinks of his devotees. Lord Krishna used to show similar concern for gopis. There are two things that make Ramakrishna unique as an incarnation. Thanks to the available technology, here we have the photographs taken during the lifetime of Thakur. We see him in a state of samadhi, which helps us in our meditation. In none other incarnation like Christ, Buddha, or Sri Chaitanya, we find a first-hand, authentic chronicle recorded when they were alive. The gospel vividly describes the master's daily life, the people he met, and what he said. Like an artist, M used his pen to draw unique pictures of Sri Ramakrishna's life, conversations, movements, singing, dancing, and traveling. The master proclaimed that God realization is the goal of life. One needs holy company to understand this message. The gospel provides holy company in abundance, as the main theme of the book is God. The gospel inspired many young men to a life of renunciation. M earned a nickname, Kidnapping Master, for this. He once said that those who have desires for worldly enjoyment or whose self-interest is hurt will criticize him. But he took that criticism as an ornament. The author then describes his own experience of how the message of the gospel has spread in the West during these 100 years. It reminded him of the words of Swami Premananda. No one is needed to preach the master. He preaches himself. He tells the anecdote of a young lady from Midwest USA who read the gospel
and got a mantra from Sri Ramakrishna, who appeared in her dreams. Hey, Baba. The author was dumbfounded to see how the master spotted those who feel sincere longing for God. The author describes the difficulties faced by the monks in the West to explain the main message of the gospel, that women and gold are Maya. Swami Nikhilananda wrote an exhaustive note in his translation of the gospel. I quote, "The term women and gold has been used in a collective sense to designate the chief impediments to spiritual progress. By it, he meant only lust and greed. He advised women, on the other hand, to shun man. Sri Ramakrishna never taught his disciples to hate any women. The master looked on all women as so many images of the divine mother of the universe." Unquote. The author, और लंबा हो रहा है, करके बंद करें जल्दी। yes, Maharaj? ये ताड़ाताड़ी करो। Ha, Maharaj. The author on his part explains to female devotees that Sri Ramakrishna's chosen devotee was Mother Kali. Bhairavi Brahmani was one of his gurus. His first disciple was his wife, and he was extremely devoted to his mother. One of the professors who found this expression offensive and stopped reading the book finally wrote after completing the book that, "I think Ramakrishna is the answer to our society, guided by two things, Dollar King and Sex Queen." A professor of mathematics liked two aspects of Ramakrishna. He never says anything that is irrational, and he is an expert in solving problems. The author also drew our attention about the slogan popularized by Mother Teresa, "Hunger for God," which is an adoption of Ramakrishna's talk about longing for God, which resonates through all the 1063 pages of the Gospel. The Master also demonstrated through his life God's love for the devotees. He told that in the beginning, God becomes the magnet and the devotee the needle. But in the end, the devotee becomes the magnet and God the needle. To quote a बंद few करो, things, बस हो गया। बंद कर दे महाराज? हाँ, बस बंद। ओके, बहुत लंबा हो गया। ओम, वेरी गुड। ठीक है, बहुत लंबा हुआ भाई, समरी नहीं होती है, लंबी होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा की। ओके, तो शैल वी स्टार्ट? हाँ, यस महाराज जी, फर्स्ट क्वेश्चन पहले सुबीर मुजुमदार। अरे वाह, महाराज जी अभी बोल रहा हूँ। कहाँ है सुबीर मुजुमदार, कहाँ मिलेगा? हाँ महाराज जी just 1 minute. I'll just yes, okay. I'm just organizing the page, Maharaj. That's all. Maharaj, the first question is, how do the parables in Bible compare to the ones which are there in Gospel of Sri Ramakrishna? Are they similar? And if they are not, then how are they different? महाराज आपने तो बाइबल पढ़ा है, पैराबल्स भी कुछ आपने पढ़े होंगे। I certainly can't answer this question. अच्छा। Because I have read once, occasionally I have just once in a while I have read Bible. I have not read the whole of it also. Okay. And this is a very, very difficult question. Purely those who are highly scholastic, those who have read both properly, they only can do it. I cannot. Okay. A big intellectual task, it is important. हाँ ठीक है, हाँ it's a big task. Whoever has read very in depth can answer, महाराज। ठीक है महाराज। My second question, Maharaj, detachment to material objects seems to be easier, but detachment from, say, my own mother or my grandchild is so difficult compared to detachment to my other relatives, wife, brother, everything. I give this example of mother and grandchild because they are the ones through which I felt the detachment
to be very difficult. Now, Thakur had given example of a grandchild to a lady, but even if I try to implement that, I cannot really still do it. It's very difficult. Can you suggest something, Maharaj? अरे भाई, I have no attachments. I am a sannyasi. How can I answer your question, Yeah. बाप रे? लेकिन आप तो इंटरेक्ट करते हैं ना महाराज, इसलिए कह रहा ना ना, वो कैसा है कि मैं तो ये समझता हूँ हूँ। कि जी महाराज। if you develop intense attachment to God, हाँ, rest of attachments will become less. will take care of itself. हाँ, They automatically will become less if you are intensely attached to God. If you have Okay. intense yearning for God. okay. So that is So where I'm first lacking. is God and yearning for God. And second is Vivek. हाँ, They are all bondages, when you have got intensity and then if you feel they are all bondages, they are yes going महाराज. to I feel your that. I bond. feel that. ये तो आपको संसार में फंसाएंगे. इस तरह करने से जी you महाराज. get detached. जी महाराज. ना, ठीक है महाराज. I understand महाराज. We have Third to भी do ऐसा ही है कुछ duty related. without detachment. हाँ? कर्तव्य कर्म तो करना पड़ेगा. कर्तव्य कर्म. नहीं, कर्तव्य कर्म अटैचमेंट की बात कर रहे हैं. हाँ, नहीं नहीं, परिवार जैसे से, ग्रैंड माँ चाइल्ड से के intense- प्रति अपना जो कर्तव्य that we have to do, but without that you have to detachment. do. हाँ, But intense love for God. यदि हाँ. intense love for God होगा ना, तो ये धीरे धीरे छूट सब जाएगा. छूट हाँ, जाएगा. हाँ, वो यहाँ तक कि हाँ. कर्तव्य कर्म भी चले जाते हैं. हाँ, हम्म. यही कमी आ रही है महाराज. That intense attachment to God हमारी हुई नहीं होने है. पे ही होगा. That is why we are feeling that way. Correct. महाराज, संसार में क्या है, वी हैव टू बैलेंस एवरीथिंग. बहुत मुश्किल है. अदर पीपल विल आल्सो क्रिटिसाइज ना, ये कुछ तो- नहीं करते कर्तव्य कर्म, ये नहीं करते, ऐसे ले खाली ये भगवान को लेके रहते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं. सुनो, देखो, ठाकुर का तो सिंगल मैसेज है ना, आप ईश्वर को व्याकुलता व्याकुलता हाँ, व्याकुलता. जी, हाँ, जी, हाँ. जी. अब वो तो आप मानोगे नहीं, वो तो वो करोगे नहीं, वो करते हैं तो महाराज, हम लोग करते तो हैं. संसार का चक्कर रहेगा. नहीं महाराज, आप ठीक नहीं, ही मैं बोल रहे महाराज हो. ऐसा नहीं बोल रही हूँ. हम लोग तो ठाकुर को बहुत मानते हैं, बहुत व्याकुल भी है, परंतु वी हैव टू एडजस्ट एवरीथिंग. संसार में जैसे देखो, सन्यासियों के आप देखो, निकल गए ना, वी कैन नॉट वो डू ये ठाकुर जब व्याकुल हो गए थे तो संसार ठाकुर के किसी और कोई रिलेशन ठाकुर ने माना था क्या? नहीं. ठाकुर ठाकुर के जब लेवल पे व्याकुल तो हम हुए लोग बहुत थे मुश्किल है. तब और कोई संसार का रिलेशन उन्होंने माना था क्या? नहीं, नहीं, फिर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. पर मैम, वो ठाकुर अभी की दोनों ठाकुर तो बोलते थे ना, ये भी एक हाथ से भगवान को पकड़ो, एक हाथ से संसार को पकड़ो. हाँ 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 हाँ, तो ये दो करना पड़ेगा अभी. हाँ, हम लोग ऐसे कर. जब नहीं, बहुत मैं- पूरा मैं- व्याकुल हो तो हाँ, दोनों हाथ से भगवान को पकड़ना, तब हाँ, मैं संसार समझ गया. छूटेगा, नहीं तो नहीं छूट सकता. ठीक है. पर सवाल क्या है कि हमारा तराजू संसार की ओर झुक जाता है. चलो आगे चलो. नहीं नहीं, मैं समझ गया. संसार ही पहले रहता है. नहीं, संसार मैं दोनों समझ गया हाथ से महाराज. संसार पकड़ लिया, भगवान छूट जाता. जी. नहीं, मैं समझ गया महाराज. ये हमारी अर्निंग की कमी है जिसके वजह से हम ऐसा बोलते हैं. ये राइट महाराज. नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज. It is also related. We live so much of our time in the world that we are constantly being tainted by doubt, desire and various passions, because हम लोग वर्ल्ड में रहते हैं. Detachment is the way we are told, and the example is breaking open a jackfruit with oil smeared hands. एक example दिया गया है. But it is extremely difficult, as I mentioned in the above question. तो मेरा कहना है, maybe it would have been easier had I been living in an ashram continuously. अगर मैं संसार को छोड़ के आश्रम में रहता तो मेरे लिए शायद ये आसान हो जाता. तो मेरा इसमें सवाल ये आ जाता है फिर से कि why is detachment itself so difficult. लेकिन आपके पिछले सवाल से मेरे को इसका जवाब मिलता है महाराज. Because our yearning is not enough. No, and because attached.
Attachment is the very basic foundation of the existence. जी We develop attachment from the very first time we are born. हाँ तो ये इतना इजी तो होगा नहीं ना. हाँ हाँ तो अटैचमेंट पे तो क्वेश्चन किया ही नहीं जा सकता. आंसर इज केवल यू टोटली अटैच्ड टू गॉड. हाँ हाँ मैं वही Then मैं कह रहा only हूँ. it is possible. Otherwise, हाँ हाँ मेरे को इस सवाल का जवाब भी आपके प्रीवियस सवाल के जवाब से मिल गया कि द ओनली वे इज टू बी अटैच्ड एंड टू बी यर्न फॉर गॉड. ठीक है महाराज. नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज. उसमें लिखा था वी रीड द गॉस्पेल, वी हियर द गॉस्पेल, बट वी डोंट एब्जॉर्ब द गॉस्पेल. तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू एब्जॉर्ब द गॉस्पेल? We read, we hear, but are unable to fully absorb it in our day-to-day life. उसको और कैसे उसमें implement किया जाए महाराज? ऐसा है कि it can only be done by practicing what is told in the gospel. तो यही तो है ना. बोलने से क्या होगा? ठाकुर ने जैसा बोला है उसको जीवन में उतारना पड़ेगा भाई. वो तो उसमें आंसर क्या, क्वेश्चन क्या होगा? Can only be done by practicing what is told in the gospel. अभ्यास, सिर्फ अभ्यास. हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा. बार 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 करते रहना. सदा पहले ही बोला सदा सर्वदा नाम गुणगान करो. हाँ राइट महाराज. ये भी नहीं भी करते हैं. सारा सदा सर्वदा सदा सर्वदा संसार का नाम करो. राइट राइट राइट. सदा सर्वदा. महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन दिस आर्टिकल चैप्टर 13 में 316 पेज पे है. इट स्पीक्स ऑफ 3 पावर्स जो अभी कुंडू जी ने दोहराया. पावर ऑफ विल पावर, पावर ऑफ विजडम एंड पावर ऑफ एक्शन टू फाइट द पोल्यूटेंट्स ऑफ द माइंड. तो कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस महाराज? क्या ये 3 पावर्स, पावर ऑफ विजडम, पावर ऑफ एक्शन, पावर ऑफ विल पावर, ये 3 पावर के थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे. विल पावर तो मैं समझता हूं. पेज नंबर 316 महाराज. 316 ओपन फर्स्ट पैराग्राफ है, ओपन में ही लिखा. हाँ. प्योर 16 क्या है? देखिए पढ़ो तो पढ़ो. एक सेकंड महाराज मैं पेज निकालता हूँ. ये तो गिरीश चंद्र घोष की बात चल रही है. केशव चंद्र गिरीश चंद्र की बात चल रही है. महाराज मैं पेज कभी निकालता भी नहीं लेता हूँ. पेज मार्क ठीक नहीं है. ये नहीं है. हूँ. मैंने गलत पेज किया. नहीं हाँ, कभी भी गलत नहीं पेज लेता है. हूँ. ये नहीं है, दूसरा पेज है कोई. 16 सेकंड पैरा. कल्मषापहम. हाँ कल्मषापम में है महाराज. द वर्ड्स ऑफ तो गॉड. क्या है इसका? हाँ, try उसमें to लिखा, visualize the room. उसमें मैं पढ़ता हूँ महाराज. हाँ. इसमें ऐसा Try लिखा to है. visualize the world as a room freshly painted. ये क्या है? Human- Desire, हाँ. doubt, pride, anger, jealousy. हाँ उसके बाद है महाराज. Desire, doubt, pride and anger, jealousy, greed and lust are continually polluting our minds. So human beings stumble and fall, overcome by temptation, but they should not yield. They must fight. The Atman manifests in a human being through these 3 powers. जिसके बारे में कह रहा था. The power of wisdom. The Atman manifests in a human being through 3 powers. हाँ, The power of wisdom, हाँ, the power of will, and power of action. हाँ महाराज. यानी ज्ञान, क्रिया, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, इन 3 के द्वारा आत्मा का पावर आत्मा मैनिफेस्ट होती है. ज्ञान शक्ति विचार करना पड़ेगा. अच्छा. क्रिया शक्ति जो हमने सोचा है उसको करना पड़ेगा. अच्छा. पावर ऑफ इच्छा को इच्छा करना पड़ेगा कि मैं भगवान को स्मरण करूंगा. इच्छा शक्ति. और पावर ऑफ एक्शन यानी उसको कर्म में परिवर्तन करना पड़ेगा. इच्छा लाइफ इज अ स्ट्रगल. ओनली 2 ग्रुप ऑफ पीपल डू नॉट स्ट्रगल.
Yes. illumined and dead. तो ये तो इन्होंने चेतनानंद जी का ही कमेंट है और तो कुछ नहीं था। कल्प साहब हमको कमेंट करते हुए कमेंट उन्होंने करते ये होता है। तो इन तीन को अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के हैं भाई। अब जैसा भी तुमको ठीक लगे, यानी एक एक अपने खुद को अपने आपने बताया है, आप पर्टिकुलर वे में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, साधना कर रहे हो। जी इसमें अगर इनको आप लगा सको तो लगा तो रहेगा। क्या देर का है? अभी करेगा एक बात दोनों करेंगे, 1 घंटे बाद आना। अरे 9 बजे अभी ये बात कर रहे हैं, 9 बजे 1 घंटे 1 घंटे बाद, 9 बजे के पहले आना चाहिए। ठीक है। तो मेरा सवाल था महाराज, इसमें इच्छा शक्ति कैसे काम, इच्छा शक्ति तो नहीं, क्रिया शक्ति का मेरी क्या काम है? इच्छा इच्छा यानी भगवान के लिए इच्छा होनी चाहिए। सारी इच्छाएं जो है, मेरे हाँ। संसार की इच्छा हो रही है, इच्छा को इच्छा शक्ति को भगवान में लगा। अच्छा। हाँ, एंड मैं स्वाध्याय करूंगा, उस स्वाध्याय की इच्छा करो, भगवान का ध्यान करने की इच्छा करो, जितनी डिजायर्स है उनको इस प्रकार से करो। और उसको इम्प्लीमेंट करना ही क्रिया शक्ति हो जाती है। हाँ, और क्या ये क्यों किया है इस प्रकार का उन्होंने? ये हाँ। क्या है कि ये वेस्टर्न साइकोलॉजी के ये फैक्टर्स हैं। ओके। विल पावर, पावर ऑफ विजडम, पावर ऑफ विल, पावर ऑफ एक्शन, ये वेस्टर्न साइकोलॉजी के। अच्छा, अ, अ, तो पावर ऑफ एक्शन स्वामी को जी, हम ये पुरुष त्रिपुंड जो होता है ना, वो 3 त्रिपुंड होता है ना, दिस इज वे दोस देखो देखो, डोंट डोंट कमेंट इन बिटवीन। यस स्वामी, सॉरी स्वामी जी। तो महाराज ये पावर ऑफ एक्शन को हम पुरुषार्थ भी बोल सकते हैं ना? वो पावर ऑफ एक्शन, विल पावर में भी पुरुषार्थ आ जाता है। हाँ। ये तीनों में जहाँ पावर ऑफ विजडम, पावर ऑफ विल और पावर ऑफ एक्शन, तो पुरुषार्थ तो तीनों में ही आ जाएगा ना। तीनों में आ जाता है हाँ, ultimately। इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट द थ्री। हाँ हाँ, दे आर 3 components वी of मस्ट the हैव विल, पुरुष। we must have will, we must have wisdom, and we must also have. जी महाराज, ठीक है। हम्म। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। हाउ डज एन अवतार इरेडिकेट कर्मा as has been mentioned in this article? By his divine power, Kapal Mohan, by his divine power. He, how can he be? जैसे हम कब बच्चा गंदा है तो उसको माँ साफ कर देती है ना, हाँ हाँ, तो उनको वे they have got a power. It is राइट। yes, spiritual divine power. By हाँ, power they are able to. राइट। वो जो एक शायद श्लोक है, वो गुरु गुरु वंदना में के जो 7-8 श्लोक है, उसमें एक ऐसा श्लोक है महाराज शायद, जहाँ पे कहते हैं कि वो लकड़ी की तरह जला देते हैं और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ था ना। क्या है वो, जो भी हो उनको we have got a power. जस्ट द पावर, हाँ, द पावर टू जस्ट लाइक वो मतलब अभी बोला था कुंडू जी ने इनके आर्टिकल में, भाई दे कैन ट्रांसफॉर्म ए पर्सन थ्रू वर्ड्स, थ्रू टच एंड थ्रू जस्ट ए ग्लांस, इट इज द सेम थिंग। ना ना, यही याद रखो, आंसर हो गया ना, सिंपल, डोंट एनालाइज, दे हैव गॉट ए पावर टू डू इट। कपाल मोचन, कपाल मोचन। हाँ, कपाल मोचन यानी आपके जो कर्म है उनको वो साफ कर देते हैं। That their power has a special power only with avatars and अवतार, ठीक ठीक है, to take it as that. Last question महाराज जी, was it a mistake on the part of Swami Nikhilananda to translate Kamini Kanchan into women and gold? You could have used easily the words like lust and greed. In fact, even one of my doctor friends stopped reading the Kathamrita when he told me that he was disturbed by reading women and gold again and again. I also think जी महाराज, lust and greed would have been better. better alternative. जी हाँ, ठाकुर तो कामिनी, ठाकुर काम कांचन बोल रहे थे, हाँ, तो तो उसका कामिनी कांचन है, काम बोलते थे, काम तो हो जाता है, हाँ काम यानी लस्ट हो गया। जी तो महाराज, कामिनी कांचन का ट्रांसलेशन में वुमन एंड गोल्ड करा, बड़ा अजीब लगता है। हाँ हाँ हाँ,
ओके, लेडीज के लिए कह रहे हैं कि नर नर और गोल्ड पैसा पैसे हाँ। बोलना पड़ेगा। हाँ ये तो बड़ा अजीब लगता है। आई एग्री विथ यू। ठीक है महाराज, दैट्स ऑल महाराज। हाँ, प्रणाम महाराज। अच्छा कुंडू। वन सेकेंड महाराज। कुंडू का है। हाँ भाई, हाँ महाराज, एक सेकेंड। तो मेरा आज 1 मिनट जरा, मेरा ये मोबाइल फोन जो है वो जरा वो नहीं हो रहा है ठीक। हाँ, शुरू करूं महाराज? शुरू करो करो करो। Question 1 महाराज, page 317. Can you please explain the phrase Bhuvi grinanti ye bhurida janaha? हम्म, Whom is it क्या applicable है? to in this context? The master or M? नहीं, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः तव कथामृतम तप्त जीवनम। उसमें क्या है, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि इसका ये मतलब ये हाँ? भूरिदा जना किसको बोला गया है? मास्टर महाशय को या मास्टर? मास्टर महाशय को, मास्टर महाशय। तो Those इसका who give this are extolled in the earth. Those who speak of God's glory, story, कथामृत, तो हाँ, मास्टर महाशय के लिए कहा। अच्छा, मतलब वो, मतलब भूरी दान मतलब वो सबसे बड़ा दान कर रहे हैं दान इस किया, हिसाब से। हाँ, इतना बड़ा दान कर रहे अच्छा, हैं। then question 2 महाराज, page 321. M asked 4 vital questions which the master answered. Can anyone follow them without preparatory spiritual practice? इधर बोला गया है कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फॉलो करो, लेकिन ये फॉलो करने के लिए बिना प्रैक्टिस का हो सकता है क्या? अरे ये जो है ना, यही तो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है ना, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं। बोलो ना, सदा सर्वदा नाम गुणगान करो, हो गई ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अच्छा, नित्यानित्य विवेक करो, हो गई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। बीच बीच में एकांतवास करो, ये अच्छा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो गई कि नहीं हुई? ये अपने आप में तो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है ना, उसको प्रैक्टिस करो ना, और क्या चाहिए? साधु संग। सदा सर्वदा नाम गुणगान करो, इसके लिए और भी कुछ चाहिए क्या? और सत्संग। और नहीं, साधु विवेक, संग। नित्यानित्य विवेक करो, एकांतवास करो, और चौथा क्या है? साधु संग। सत्संग महाराज, साधु सत्संग। संग करो। तो ये तो हो गई डिसिप्लिन, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम महाराज ये है कि ऐसे किसी ने पहले तो बताया नहीं। सत्संग के बारे में तो बोला है दूसरे शास्त्र में, नहीं लेकिन नहीं, बाकी ठाकुर बोल रहे हैं ना, तब किसी ने बताया नहीं, यानी किसी को बताने की जरूरत है क्या? हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ महाराज। नहीं नहीं, 4 बातें ठाकुर ने बता दी हैं। अब उसको सोचना नहीं है कि ये कौन से शास्त्र में है, भागवत में लिखा है या गीता में लिखा है। हाँ। ठाकुर ने 4 बातें बता दी, जीवन में उतारो, खत्म हुई बात। अच्छा, तो यही मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब समरी यही है, यही करना है। यही है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, 4 करके देखो ना। अच्छा, महाराज उद्धव गीता में भी लिखा है कि भक्ति में क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है, और फिर वो सत्संग की बात भी फिर वहां से शुरू करते हैं। न छोड़ो, यहाँ पे हो गया, हो गया। अच्छा हो गया महाराज, तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, पेज 324. Why is Master Mahasaya called a hidden yogi? He did all spiritual practices like a yogi only. उनको हिडन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ही डज नॉट अपीयर टू बी योगी। अब बाहर नहीं दिखते थे कि हमेशा तो वो ठाकुर की बात ही बोलते थे, घर को आश्रम बना नहीं, के रखा था बाहर कोई वो साधु कपड़ा, गेरुआ कपड़ा तो पहना नहीं था ना। तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कोई योगी है? अच्छा, then last question Maharaj, page 328. This first vision resulted from his longing and not through sadhana. What is the difference between the two? Will you please discuss this question?
ये साधना begins with longing, व्याकुलता। नहीं, ये आई एम कोटिंग महाराज, इसमें कोटेशन मतलब इसमें दिया हुआ है पेज 328 में, दैट ठाकुर का जो फर्स्ट विजन हुआ था मंदिर में, लीला प्रसंगों को कॉन्टेक्स्ट में लाते हुए बोल रहे हैं, दिस फर्स्ट विजन रिजल्टेड फ्रॉम हिज लॉन्गिंग नॉट थ्रू साधना। तो इस साधना लॉन्गिंग में डिफरेंस क्या हुआ? Because it is the beginning of sadhana, it's not yet started. अच्छा, साधना मतलब क्या? रिचुअलिस्टिक साधना बाद में, जो तांत्रिक साधना, वैष्णव साधना? क्या ध्यान जब करें, ये इच्छा है, डिजायर है, व्याकुलता है, तीव्र व्याकुलता, उसी से दर्शन हो गया। कहाँ है ये? कौन सा पेज जो भी है क्या है? 328 के लास्ट पैराग्राफ के ऊपर की 2 लाइन है। अच्छा, ऊपर की 2 we लाइन। find description of devotees longing, love and longing for God, but God's love for devotees is not mentioned. In the Puranas, we find descriptions of devotees love and longing for God. इसके ऊपर क्वेश्चन है क्या? ना, क्वेश्चन है महाराज, आई एम रीडिंग महाराज, इन श्री रामकृष्ण, पेज नंबर बोलो। 328, आई एम रीडिंग, ये लास्ट बट वन पैराग्राफ है, इन श्री रामकृष्ण, ये लास्ट से लेके ये 4 लाइन, आखिरी की 4 लाइन है। आखिरी की 4 लाइन है। हाँ। In Sri Ramakrishna and his divine play, Swami Saradananda wrote that when the master accepted the position of priest in the Kali temple, his longing was so intense that soon after he had a vision of the mother. This first vision resulted from his longing, not through sadhana. हाँ। Without longing, spiritual life lacks intensity and becomes monotonous. ये लिखा Now, हुआ। what is your question? मेरा क्वेश्चन ये है महाराज, जैसे साधना बोलते हम क्या समझ रहे हैं? लॉन्गिंग भी तो एक साधना ही है। तीव्र, यहाँ पे उसको अलग करके बोला है, अब क्या करोगे? हाँ, तो इधर साधना बोल के क्या समझा रहा है? उसके बाद में लॉन्गिंग हुई, उसके बाद में मेरे को भगवान के लिए व्याकुलता हो, उसके बाद में जब करने लग गए तो इंटेंसिटी जब के साथ बनी रही। जैसे उसके बाद जो 12 साल की जो साधना किया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, वो कह सकते हो, वो लॉन्गिंग शुरुआत में हुई है, उसके बाद में 12 साल साथ नहीं। अच्छा, ठीक महाराज। मतलब लॉन्गिंग कितनी इंटेंसिफाइड थी कि उसी से उनको दर्शन हो गए, साधना कर तो बाद में हुई, ये कहना चाहते हैं। देखो, हाँ, साधना का तो पहले कैसे क्या हुआ तुम्हारा? हाँ, लॉन्गिंग कितनी इंटेंसिफाइड थी, लॉन्गिंग से दर्शन हो जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं। साधना बाद में होती रही, बाद में तीसरे दिल्ली आ जाओ। आज मेरा ये मोबाइल फोन में फोटो वोटो नहीं आ रहे हैं ठीक से। जी, हाँ, आपकी फोटो आ रही है महाराज अच्छी। हाँ, आप मेरे से आगे है, दिलीप भाई की कहाँ है? जी महाराज जी, क्या मेरे को चालू करना है? अब आप क्वेश्चन कीजिए ना आपके। जी महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 313, opening paragraph. Oh Lord, your nectar-like words stop the burning misery of afflicted souls. Your words, which the poets have sung in verse, vanquish the sins worldly people forever. Blessed are they who hear about your vast glory. Now my question is, Maharaj, if only by hearing the nectar-like words sung by the poets vanquish the sins of worldly people forever, then all who have heard nectar-like words and who have sung both will get Brahman or heaven immediately. Because हम लोग तो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हम तो हम ये नहीं मानते हैं कि ये नेक्टर लाइक वर्ड हैं। मानते हैं क्या? महाराज जी नहीं, ये आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा वैलिड हो गया कि हम नहीं मानते हैं, परंतु
हम इसके पीछे ही पड़े हुए हैं ना। अरे ये पीछे पड़े हुए हैं कुछ नहीं है, संसार के पीछे पड़े हुए हैं। अमृत तो संसार में मिल रहा है हमको। वचनामृत में क्या अमृत मिलता है? वचनामृत अमृत मिलता है तो उसको छोड़ते ही नहीं। अरे जिसमें पूरी फेथ हो कि ये जो वर्ड्स है ये नेक्टर है, किसी में नहीं है। महाराज जी, मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक छोटा सवाल ये है कि वचनामृत हमारे लिए सब कुछ है, हम वही पढ़ते हैं, तो ये हम विश्वास से ही तो पढ़ते हैं। अरे कोई सब कुछ नहीं है। 5-10 मिनट का पढ़ना हुआ, 15 मिनट पढ़ना हुआ बस। और सारा जीवन 23 घंटे जो है ना वो संसार है, सब कुछ नहीं है वचनामृत। अच्छा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इवन आफ्टर हियरिंग दिस नेक्टर लाइक वर्ड्स वी हैव टू बी with them for rest of the time throughout. नहीं नहीं, नेक्टर फॉर मी दे आर नॉट नेक्टर लाइक। ये तो अच्छा। बोलते हैं, ये बोल दिया है तब कथा अमृतम। तो श्रीमद श्रीमद भागवत ने बोला है कि भगवान के वर्ड जो है तुम आपके हाँ। प्रभु आपके वचनामृत, तो ये तो है ना वचनामृत जो है। अरे हाँ वाह वाह, आपका लेक्चर कितना कैसा अमृत जैसा था। जी। आपका आपकी अमृत वाणी है। हाँ हाँ मैं महाराज आपका मैंने प्रवचन, आपका अमृत वाणी का प्रवचन कल मैंने सुना था महाराज। आपकी यस अमृत वाणी थी, बातचीत की बात में अमृत वाणी, मीठा मीठा, ये मीठे को अमृत नाम बन दिया, बस और कुछ नहीं है ये। महाराज ये इसीलिए कहने की बात है, उसको समझने की बात नहीं है। लोग कोई नहीं महाराज समझता इसको। महाराज इसीलिए बाद में लिखा है ना कि वी हियर वी रीड बट वी डू नॉट एब्जॉर्ब। चलो यस। चलो अब समझो, हुआ दिलीप भाई महाराज जी, हुआ? second question on the same page, page number 316, his knowledge came straight from God. महाराज जी, my question is other, yes महाराज जी, ये क्वेश्चन है, his knowledge came straight from God, ये रामकृष्ण देव के लिए कहा गया है। नाउ माय क्वेश्चन, ये पेज नंबर 316 पे इन्होंने लिखा है क्या? ओपनिंग चौथी लाइन में लिखा है, बट रामकृष्ण हिमसेल्फ हैड नो फॉर्मल एजुकेशन, हिज नॉलेज केम स्ट्रेट फ्रॉम गॉड। ऊपर से अच्छा, 5वीं लाइन है। यस। हाँ 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 ठीक है, हाँ। ओके। तो प्रश्न क्या है आपका? हाँ, नाउ माय क्वेश्चन इज कि इनको तो नॉलेज ईश्वर से प्राप्त हुआ था डायरेक्ट, हाँ while Ram and Krishna had to go to the Rishi Munis to get the knowledge. Am वो I correct? नहीं नहीं, उनको भी भगवान से प्राप्त हुआ था। तो फिर इनको वहां जाना क्यों पड़ा आश्रम में? नहीं दोनों नहीं नहीं, ये तो वशिष्ठ जी ठाकुर ले जी गए और संदीपनी आश्रम में गए। तो गए थे, उससे क्या हुआ? वो जो बोले थे वो दूसरा ज्ञान, वो संसार का ज्ञान उनको संदीपनी से मिला था। अच्छा लेकिन अच्छा अच्छा। लेकिन भगवान का ज्ञान उनको डायरेक्ट भगवान से। अच्छा, ये सांसारिक ज्ञान के लिए गए और थे ये संदीपनी आश्रम के उनके ज्ञान के द्वारा वे अवतार नहीं हुए। अच्छा जी, ओके। अच्छा, ये सांसारिक ज्ञान लेने के लिए ठाकुर को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो उनके पास संसारिक ज्ञान तो क्या, वो तो थोड़ा 4-5 चौथी 5वीं क्लास तक गए थे, क्या था गए, संसारिक ज्ञान कहाँ था? ओके, राइट। महाराज जी, माय थर्ड क्वेश्चन पेज नंबर 316 पे ही है। Only two groups of people do not struggle, the illumined and the dead. Here, illumined means Brahman. ब्रह्म Can we? ज्ञानी। हाँ। इल्यूमिन का है ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित, ये इधर मीनिंग, और कोई मीनिंग नहीं, नहीं। सिर्फ अच्छा। ये लेना, ज्ञान के अज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित जो है उसको इल्यूमिन कहा गया है। जी। ब्रह्मन टम्मन मत लगाओ यहाँ। अच्छा, तो महाराज जी, पर ये जो मिलता है, तो वी कैन से दिस ऑल सन्यासीज आर इल्यूमाइंड, ज्ञान का प्रकाश तो कैन वी से?
नहीं नहीं, कहाँ इल्यूमिन होता है, हमारे ज्ञान के साधना करने के बाद में ज्ञान आएगा। अच्छा, ओके, जी 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 महाराज। बट एक सेकंड महाराज, ओनली 2 verses. Okay, Maharaj. Number 4, page number 370. There is one defect in this book. It has an end. Maharaj ji, my thinking is, where is an end? According to me, whenever you read, you find always new and appeals that it is for me. Maharaj ji, my thinking is correct? Very correct, very correct. Okay, right. So, now next question. Most people think that it has no end. Yes, that is. Okay. Maharaj, now next question. Page number 317. Only he whose life is free from problems can solve others' problems. Yes. महाराज जी, ये तो जो कहा गया है, अब मेरा यहाँ पे सवाल है महाराज जी, this sentence means problems can never be solved by any person, as on this earth everyone has one or the other problem. The solution Yes. is only in gospel of the Ramakrishna, right? Yes, 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 yes. कोई व्यक्ति किसी संसार के सभी समस्याओं को समाधान कर सकता है? नहीं, तो बस मेरी प्रॉब्लम, यस, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम मेडिकल चीजों के द्वारा के समस्या प्रॉब्लम संभाल हो गई है, तो मैं तुम्हारी मेडिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि मेरी मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यस, तो इस प्रकार से तो किया जा सकता। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व? okay. So for that we have to go only for the gospel of Sri Ramakrishna. जो भी हो वहाँ जो लिखा है उसकी बता रहा हूँ। जी, okay. Maharaj ji, now next question. Last 3 lines on page number 317. But there is nothing. My thinking, Maharaj ji, to take Thakur's name vanishes all the sins. But most of the sadhaks are followers of Swami Vivekananda for his karma yoga. So, which marks should be followed? Further, in the 21st century, when everyone is after a materialist world, then which path is easier to follow, bhakti or karma? ऐसा देखो, दोनों मिक्स कर दिया तुमने। पहला का वो सेंटेंस वो और दूसरा मैं भक्ति कर्म ले आया हूँ। हाँ, वो दोनों अलग करो तो दो चीजें मिला दी तुम। नहीं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है to take Thakur's name vanishes all the sins. हाँ, तो ये एक क्वेश्चन हुआ तुम्हारा कि होता है क्या? और दूसरा क्वेश्चन है भक्ति और कर्म, अलग हुआ ना? 2 क्वेश्चन। हाँ, अलग, हाँ, 2 क्वेश्चन। तो फिर 2 मिक्स कर रहे हैं ये मेरा। जी जी जी। तो पहला ये है, अगर तुम विश्वास करते हो और तुम्हारे विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, इस ठाकुर के ऊपर विश्वास है कि ठाकुर नाम लेने से मेरे बाप चले जाएंगे, तो बाप चले जाएंगे। ओके, अच्छा, तुम ठाकुर में इतना विश्वास करते हो जी, पर और यदि यही चाहते हो तो कोई दूसरा बात दे। अच्छा, दिस इज इंडिविजुअल थिंकिंग। हाँ, इंडिविजुअल पे है। ओके, राइट महाराज। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? नहीं, दूसरा मेरा ये कहना था कि कर्म योग जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने प्रोपेगेट किया है, और उस इन द 21st century when there is always a materialist world and nobody thinks about the God, then the karma yoga is easier. कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है स्वामी जी। ज्ञान योग में विचार का पथ है, तो उसमें ईश्वर को न मानो तो भी विचार के द्वारा कर सकते हो। ओके, भक्ति को मैं नहीं मानो, हाँ, कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, कई प्रकार के मार्ग हैं, वो जो चाहो तुम तो करो। राइट। बुद्ध भी तो भगवान को नहीं मानते थे। हाँ, बुद्ध ने भगवान को बिल्कुल नहीं माना, और पूरा इतना बुद्ध धर्म में पूरा इतना बड़ा जी, ओ, राइट। तो आवश्यक थोड़ी है कि विश्वास होना चाहिए, तो इतने सारे मार्ग। जी महाराज जी, ऑन पेज नंबर 318 जो छोटा सा सवाल लिखा है, महाराज जी प्लीज एक्सप्लेन 7 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन।
ऐसा है कि अब तुमको मैं बोलने को बता दूंगा 7 लेवल्स हैं, लेकिन वो ऐसा है कि प्योरली टेक्निकल है, वो समझ में नहीं आएंगे। तो फिर हाँ। हाँ वी ड्रॉप इट महाराज। हाँ, वो मेरे पास लिखा हुआ है, अभी कहाँ रख दिया मैंने, एक बार लिखा था तनुमान ऐसा सत्तापति ऐसा करके जो है इधर कुछ 7 लेवल। अब सुन लो बस। हाँ पहला जी। शुभ, मन में अच्छी इच्छा का उदय होना। हाँ दूसरा है सुविचारना, अच्छे विचार लाना। जी। तीसरा है मन तनु मानसा, मन जो है एकदम शांत हो जाएगा, मन में सब बातें निकल चली जाएंगी। जी। चौथा है सत्वापत्ति, उसमें सत्व हाँ आएगा। पांचवा होगा असंसक्ति, यानी पूर्ण रूप से अनासक्त हो जाओगे। छठा है पदार्थ भाविनी, यानी केवल भगवत चिंतन होता रहेगा। और सातवां है तुरीयगा, यानी सबसे परे चले जाओ। ओके तो ये 7 है, अब किसी को लेना देना नहीं है तुम्हारा। चलो जी। ओके जी महाराज फिर महाराज। से बोलिए ना, फिर से बोलिए एक बार, धीरे धीरे। धीरे धीरे नहीं होगा। हाँ। देखो, अरे शुभेच्छा, हाँ, शुभेच्छा। सुविचार, जी अनुमानता, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भाव। तुम एक काम करो, मेरे को एक SMS पे क्वेश्चन लिख दो, मैं उसका उत्तर दे दूँ। ठीक ये है। योग वशिष्ठ में है ना महाराज, उधर आपने बताया था पढ़ाते हुए। ये पता नहीं किसमें है, ये है जी। इसको दूसरी बार अपन YouTube पे सुनेंगे तो ऑटोमेटिक स्टॉप करके लिख लेंगे। महाराज जिसको ये हमने पढ़ा है महाराज। 7 चीजों को क्या बोलते हैं? What is the 7 things called? 7 levels of consciousness. अच्छा 7 levels. यस। 7 ये पंचदशी में है महाराज, बोला है पंचदशी। इन्होंने। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आपने पहले पंचदशी बोला है। है, आपने ये पहले बताया। 7, ये साधना के 7 स्तर हैं। ओके अब जी क्या जी। लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, ये तो यहाँ नहीं बताया गया है ना। हाँ अच्छा। लेकिन ये 7 जो है, ये योग वाशिष्ठ में या कहीं पे मिले। Okay, now next question, page number 319. Maharaji, can we say the gospel of Ramakrishna is 100% authenticated? Then the other Vedic literatures written by Shrutis and Smritis, because Shrutis represent that which is heard, whereas Smriti represents that which is remembered. Yes, Maharaji. तो आपका क्या प्रश्न क्या है? मेरा सवाल ये है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मिस्टर एम ने जो भी मास्टर के लिए लिखा है वो सब या तो उनने सुना था, नोट करा था और उन्होंने उसको डिपिक्ट कर दिया। अब ये श्रुति और स्मृति, हाँ श्रुति और स्मृति के अंदर, तुम्हें तो बताया श्रुति और स्मृति। हाँ इसके तो अंदर उन्होंने सुना था, तो ये श्रुति हो गई। नहीं, पर ये और नहीं महाराज जी, मेरी थिंकिंग जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि इन्होंने जो सुना था वो डायरेक्ट माउथ से नहीं सुना था। डायरेक्ट माउथ से तो क्या? हाँ, ठाकुर के तो माउथ क्या से। प्रश्न क्या है तुम्हारा? नहीं, तो मेरा प्रश्न ये है कि इसके अंदर इन्होंने अपना भी कुछ लिखा होगा, जैसे कि इसके अंदर लिखा है कि मिस्टर एम का एक भी वर्ड अपना खुद का नहीं है। ठाकुर के मुख नहीं, तो उसका पहले वाले श्रुति स्मृति से क्या ये लेना देना? नहीं पहले की श्रुति स्मृति क्यों लगा रहे हो? अच्छा जी, उसमें जो है सो है। ओके महाराज, चलो पेज तो, now 320, only last question. You may see God if your love for him is a strong. These 3 attachments put together, namely the attachment of a worldly man to the things of the world, the attachment of a mother to a child, and the attachment of a chaste and devoted wife to a husband. Maharaji, please explain these 3, how it is helped. गॉस्पेल में है ना। अरे मेरे तो पति क्या है, किसका है, क्या बोला तुमने? You may see Sotir, God if sotir, your sotir, love for sotir. him is a strong. These 3 attachments, 3 attachments है. 3 हाँ। attachments are worldly men to the things of the world. The अच्छा देखो, सुनो भाई, दिलीप भाई, हाँ जी, मैं संसार के आदमी नहीं हूँ, तो मेरा अटैचमेंट संसार के प्रति नहीं है। मैं माँ नहीं हूँ, तो माँ के बच्चा के प्रति अटैचमेंट नहीं है। एक स्त्री का पति के प्रति अटैचमेंट नहीं है। ये तीनों तो मुझ में नहीं है, मैं कैसे जानूंगा, बोलो? संसारी लोग जानेंगे अच्छे से। तुम लोग जवाब दो। तीनों का इसलिए मिक्सचर बोला है, मिक्सचर।
तीन प्रणाम टान महाराज एक जी। होले हवे। अरे दिलीप भाई, इसका मतलब ये है कि इतनी तीव्र आसक्ति होनी चाहिए भगवान के प्रति। इतनी आसक्ति एक धनी लोग के पैसे के प्रति रहती है, हाँ। उसके साथ जोड़ दो एक माँ के बच्चे के प्रति आसक्ति और सती की पति के प्रति आसक्ति। कितनी तीन आसक्ति, तीव्र आसक्ति हो के भगवान में मिलाओ तो भगवान का दर्शन होगा। ये मतलब है, सीधी बात। जी। अच्छा, बराबर जी महाराज जी, और प्रणाम। इसमें प्रश्न क्या था तुम्हारा? सीधी बात थी ये। पर ये संसार में रहने के बाद ये तीन अटैचमेंट में से कोई भी एक अटैचमेंट में कहीं ना कहीं आदमी चिपक ही जाता है। नहीं, इन तीन अटैचमेंट से लेना देना नहीं है। ये कहा गया है कि इन हाँ। तीन प्रकार की आसक्तियों को मिलाकर जब भगवान की तरफ लगाओगे तो भगवान का दर्शन होगा। Power of ये three अब attachments. समझ में आई दिलीप भाई? हाँ, समझ गई है, पर ये तीन छोड़ने के बाद होगा, ये तीन के अरे साथ। ये भगवान ये भगवान क्यों से मिला रहे आसक्त हो? होना फिर है। बात छोड़ने की बात कहाँ आ रही है? It is the power of three भगवान को attachments. सुनो, भगवान को कैसे प्यार करना चाहिए? हाँ। जैसे धनी लोग पैसे को प्यार करता है, इस तरह समझते हो। ये सब समझ में आएगी नहीं जी जी। है? अच्छा, भगवान को कैसे प्यार करना चाहिए? जैसे एक माँ बच्चे को प्यार करती जी, वैसा करना चाहिए। है। ये समझ में आ गया? अगर हाँ, अगर अब इस संसार में भगवान को कैसे प्यार करना चाहिए? जैसे एक सती अपने पति को प्यार करती। हाँ, पर ये करने का उन्होंने वो बताया, पर इसको छोड़ के ही हम ईश्वर के पास जा पाएंगे ना प्यार करने। ओहो, छोड़ने की बात समझ नहीं आ नहीं रही है। लगा। ये भगवान, ये मतलब यह छोड़ने की, अच्छा ये छोड़ने की बात नहीं है। जी, इस प्रकार से करो बस। ये उदाहरण है कि इस प्रकार की तीव्रता होनी चाहिए भगवान के लिए। ओके, बराबर। वो अभी भी नहीं समझ में आई? नहीं, अब समझ में आ गया। छोड़ने का सवाल अभी यहाँ नहीं आ रहा है, नॉट हियर। ओके, अंडरस्टूड। बस हो महाराज गया जी, दिलीप कंप्लीट। भाई? हाँ, हो गया महाराज। अच्छा, तीसरा शिवानी। हाँ जी महाराज, प्रणाम। महाराज, फर्स्ट क्वेश्चन है पेज 315. Worldly people are like the smell of fish. So my Yes. question is how we can grow our attention or interest towards God. क्या है वो? कौन सा पेज है? 315 315। उसमें क्या है? क्या लिखा है? वर्ल्डली People like people the are smell of like the people like the smell of fish. Hmm. यानी दृष्टांत दिया Like. है, यानी वो लोग क्या है, वे दे कैनॉट एंड ब्यूटीफुल ब्रेक। वो दृष्टांत दिया है कि एक मछुआरी थी, वो अपने फूल वाली की बहन सहेली के घर में ही थी। वहां उसको नींद नहीं आ रही थी, मछली को पास में रखा तब उसको नींद आई। इसमें कहा हम लोग, ये संसारी लोग जो हैं, वो ऐसे लोग हैं जो संसार की गंध को अच्छी लगती है उनको। अब तुम्हारा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है कि भगवान की तरफ हम फिर कैसे अपना इंटरेस्ट ज्यादा कर सकते हैं, वो क्योंकि वो भगवान को ईश्वर में मन कैसे लगे? ज्यादा लगे। सदा सर्वदा भगवान का नाम करो, साधु संग करो, लीला चिंतन करो। इससे धीरे धीरे भगवान की तरफ मन लगेगा। साधु संग, ठाकुर ने कहा साधु संग करो, सदा सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करो, फिर लीला चिंतन करो भगवान का कि भगवान कितने अच्छे हैं। भगवान के प्रति रस आना चाहिए ना, तो ऐसे लोगों के पास जाओ जो जिनमें भगवान के प्रति रस है, सत्संग है, साधु संग है, वो करे हैं, उनके प्रति जाओ, ऐसे लोगों के पास जाओ। धीरे धीरे संगत का असर होगा और तुमको भगवान के प्रति रस आएगा। पर बड़ा महाराज मुश्किल है, प्रैक्टिकली, बड़ा। हाँ प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं होता ना, ऐसे ये लोग तो बात मिलते भी नहीं। है। हाँ। करना तो पड़ेगा।
समाज संसार में ये ना गर्दन तक डूबे हुए हैं संसार में ना, गर्दन तक डूबे हुए हैं, बड़ा मुश्किल है। तो प्रैक्टिकली नहीं है तो भी क्या, प्रश्न ही तुम्हारा प्रैक्टिकल, बट आंसर इज दिस। तो भगवान के साधु संग करना पड़ेगा, सत्संग में रहना पड़ेगा, सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करना पड़ेगा। ठाकुर ने जो पहले क्वेश्चन किया ना, ईश्वर में मन कैसे लगे, पहला क्वेश्चन है ना ये वचनामृत का। पहला क्वेश्चन तो ठाकुर ने बता दी 4 बातें, सदा सर्वदा नाम गुणगान करो, साधु संग करो, नित्य विवेक नित्य करो, विवेक। और बीच बीच में एकांत करो। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, चाहे कितना भी No डिफिकल्ट हो, shortcut. देयर इज नो अदर। ठीक है महाराज। हाँ। सेकंड क्वेश्चन है पेज 317 317। वन नीड टेक shelter in Ramakrishna to be free from fear and punishment. No worldly rules can bind such a person. So please explain this. How is it possible? हाउ इज इट पॉसिबल? ये इस लाइन के लिए है, no worldly rules can bind such a person. यदि एक रियल सचमुच टोटल सेल्फ सरेंडर, सिंसियर सरेंडर होवे तो प्रारब्ध कर्म भी कट जाते हैं। देखो कैसे कैसे पापी लोग ठाकुर के पास आए थे। गिरीश चंद्र घोष कहते थे मैंने ऐसा पाप नहीं किया जो मैंने नहीं किया। और दाना काली शराब में धुत रहता था, उसका नाम ही दाना यानी दानव काली हो गया था। ऐसे लोग ठाकुर के पास में आए, अगर एक बार सिंसियर सरेंडर उन लोगों ने किया तो ठाकुर ने उनको कपाल मोचन, ठाकुर ने उनके पाप से साफ। तो ये अगर कोई सिंसियरली सरेंडर करे ठाकुर को, भगवान को पूरे मन से करे तब ये संभव होता है। जी ठीक तो है। तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ जी महाराज। थर्ड क्वेश्चन। महाराज दाना काली एंड काली प्रसाद सेम ना? नहीं, पता नहीं क्या दाना का नाम था उसका। दाना कली तो एक्टर थे। नहीं, दाना दाना उसको दानव दानव यानी दुष्ट था, इतना दुष्ट था यानी इतना पापी था वो, इसलिए उसको दाना हाँ। काली दाना बोल। तो काली नाम था, काली प्रसाद होगा या क्या नाम होगा? कालीपद घोष कालीपद था अलग महाराज, था, हाँ अलग है। कालीपद घोष, कालीपद और घोष। वो श्यामपुकुर में रहता था। हाँ वो अलग अच्छा है। ठीक, वो अलग है। हाँ। अब जब भाई दो भी हो। थर्ड क्वेश्चन थर्ड महाराज। क्वेश्चन। हाँ, पेजेस 321 एंड 322। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। देयर आर 4 क्वेश्चंस आंसर्ड बाय श्री रामकृष्ण जी। As I am doing all this as suggested by Ramakrishna ji, but how to see God? Please guide. तो चारों क्वेश्चन तो हो गए ना, चारों कर रहे हो ना तो? हाँ जी। तो करे जाओ, और क्या करोगे? वो What कहते more हैं ना can I फिर say? भगवान दिखाई देते हैं, पर वो नहीं हाँ दिखाई दिखाई देंगे तो है? पूरा विश्वास होना चाहिए। 4 उसमें क्वेश्चन है, लिखा है कैसे भगवान में मन कैसे लगे, उसके नहीं, बाद भगवान में दिखाई संसार में देंगे। कैसे रहना, उसके बाद में है कि तीसरा क्वेश्चन भगवान को देखना संभव है क्या, ये। दासी के समान और रहना। चौथा क्वेश्चन है कैसी कंडीशन में भगवान को दर्शन है। हाँ 4 क्वेश्चन है। हाँ जो भी व्याकुल। दिया है उसको पूछो और उसको करो, और क्या करूंगा मैं, क्या बताऊं? किए जाओ और कुछ करना। व्याकुलता, ठाकुर व्याकुलता की बात बार बार। नथिंग मोर देन दैट आई कैन से, ये मेरा कहना। चलो क्या आगे बोल रहे चले। महाराज? अरे ये क्वेश्चन जो पूछा है उसका हाँ। उत्तर ठाकुर को दे दिया है ये। आप क्या बोल रहे हैं व्याकुलता से? ना व्याकुलता तो है ही, ईश्वर हाँ, का दर्शन कैसे हो, ठाकुर ने तो कहा व्याकुलता से हो। व्याकुलता, हाँ। It is the most important ना, व्याकुलता is the most important. महाराज लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू क्राई फॉर गॉड?
सब वही एक ही क्वेश्चन है। ये अब तो ये कोई रोना को सिखाते हैं, सिखा सकता है क्या? तो एक एक कहानी है, किसकी है, ब्रह्मानंद जी की है या क्या है, कि वो एक आदमी ने सुना है कि भगवान के लिए रोना नहीं, तो रोना तो आता नहीं था, तो वो आर्टिफिशियल रोता था, यानी आंख में पानी डाल देता था, आंसू बना लेता था, और करते करते वो रोने लगता था। तो किसी ने देख लिया उसको, यानी कोई डायरेक्ट डिसाइपल ने, ब्रह्मानंद जी ने देखा या किसी ने देखा, या किस पता नहीं किसने देखा, और कहा अरे इसको व्याकुलता चाहिए, इसमें यह डिजायर, इच्छा है इसकी रोने की, व्याकुल होने की, उनको उसने कृपा कर, और उसके बाद में उसको सच्ची व्याकुलता हो। जी। तो भाई ये तो क्या है कि अपनी इंटेंसिटी, तीव्रता भगवान के लिए बढ़ानी पड़ेगी। अब ये कैसे बढ़ेगी, ये तो बड़ा मुश्किल। कोई निर्जनवास, एकांतवास, साधु संग, ये सब करना पड़ेगा। अब सारा जीवन तो संसार में बीतता है ना भाई, दिन से सुबह से लेकर शाम तक संसार में रहोगे तो कैसे काम? उसमें अब व्याकुल होके, उसमें तो क्या है कि व्याकुल होके पुकारो, प्रभु ये संसार से मुझे छोड़ो, मुझे भगवान में मन लगा, ऐसा करो कि मुझ में व्याकुलता हो। व्याकुलता के लिए ही व्याकुल होकर पुकारो, ये कर सकते हो, क्या करूंगा बोल। ठीक है महाराज। ठीक है। हाँ हाँ, जी, दैट्स ऑल। प्रणाम चलो। महाराज। हाँ भाई, सतीश, सतीश प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज। नमस्ते, बोलो। हाँ। Maharaj, my first question is this. Christ said, whoever listen to me तो ठीक करो, माइक and ठीक करो, ठीक करो, ठीक नहीं आ रहा है, माइक ठीक करो, आवाज नहीं आ रहा है, गड़बड़। Ji Maharaj, Christ said, whosoever heareth my sayings and doeth them, I shall liken him to be a man of wisdom who has built his house on rock. महाराज, उन्होंने कहा था ना, क्राइस्ट ने कहा था कि जो मेरी बातों को सुनता नहीं है बल्कि उनको जीवन में लेके आता है, तो उस वो ही इज ए मैन ऑफ विजडम, जिसने हाँ। अपना घर रॉक पे बना रखा है। हम्म, महाराज, वी फॉलो द टीचिंग्स ऑफ थाकर but unable to carry them into deeds. Are our houses built on sand? यस। Yes. महाराज, हम उनको, उन्होंने कहा था ना 16 आने करो, 16 आने में से एक आना करो। अब तो एक पैसा भी नहीं कर पाते, तो क्या जो मतलब एक आना भी नहीं कर सकते तो पत्थर पे कैसे, दीवार में, चट्टान पे कैसे बनेगा तुम्हारा घर, ये बताओ। जी 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 महाराज, जी महाराज। ये तो सीधी बात है। तो क्या करना चाहिए महाराज हमें? अब जो करना चाहिए, जितना कर सको उतना करो, संसार में है, क्या करें, दुर्भाग्य ये है। महाराज, चट्टान में घर बनाना मतलब बहुत डिफिकल्ट है ना? हाँ, हाँ, बहुत डिफिकल्ट इम्पॉसिबल। नहीं, प्रश्न डिफिकल्टी का नहीं है, वो चट्टान में घर बनाने पर फिर गिरता नहीं है, ये पॉइंट। हाँ? टिकता नहीं है। हाँ। सैंड पे गिरता हाँ, नहीं है। वो बाइबल की कहानी है महाराज जी। एक ने रेत वही पे वही घर वही बनाया। उसी के ऊपर, तो उसी पे बात हो रही हाँ है, हाँ उसी पे हाँ बात। हाँ। यानी ऐसा करो दिन सती, एक दो जी छोटी महाराज, छोटी साधनाएं जो रोज कर सकते हो उसको करो, हाँ, जो वो तो करते कुछ हैं दिन महाराज। करो, उसके बाद में एक दो छोटी छोटी और चीजें जो जोड़ो उसके अंदर। जी ऐसे जी धीरे महाराज। धीरे धीरे साधना बढ़ाते जाओ। नहीं तो क्या है, अच्छा, 20 साल पहले जैसे थे वैसे के वैसे रहोगे तो क्या फायदा होगा। जी जी महाराज, जी महाराज। We ठीक। are in the bondage of the world. But next question. We don't know how this Maya traps, binds and enslaves us. Maharaj, why this Maya, which is God's power, binds us? Why is it so horrible? महाराज, जो भगवान कहते हैं ना, भगवान की माया है, तो जो अरे माया है माया, भगवान की, तो हमें माया ट्रैप यदि करती है। नहीं रहे, सुनो, यदि माया नहीं रहेगी तो भगवान की लीला कैसे चलेगी। जी जी जी। बट और इतनी तुम बोलते हैं माया सो हॉरिबल। जी जी महाराज, इट इज सो हॉरिबल। कौन मानता है, कौन मानता है हॉरिबल? 90% लोग माया को हॉरिबल नहीं मानते। जी महाराज, राइट महाराज।
सब बहुत बढ़िया है माया तो। पति पत्नी बच्चे संसार मकान पैसा कितना सुंदर बढ़िया है सर। पर ये नहीं मानते कि तो दिस इज ऑल बॉन्डेज। यानी यदि माया नहीं रहना तो सब गायब हो जाएगा। तो ये बाबा माया जो है ये नाम बता दिए, संसार में रहना है, संसार में माया है। जो लोग अध्यात्म चाहते हैं उनको लगता है बंधन, नहीं तो बाकी अधिकांश लोगों को ये बढ़िया। राइट महाराज, हमने हमारा एक्सपीरियंस है। तो मेरा कहना ये था महाराज, परमात्मा क्यों ऐसा करता है, क्यों ऐसा बनाता है? संसार करता है। संसार से क्या तो संसार परमात्मा बैठा रहेगा तो संसार विलीन हो जाएगा। माया जी। नहीं रहेगी तो संसार भी नहीं चल सकता। ये जगत की सृष्टि नहीं कर सकती भाई, ये तो जी सोचो। जी 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 महाराज, उसमें तो तीनों गुण सृष्टि होंगे। चलाने के लिए माया जरूरत है। 70 अवस्था में तीनों गुणों से सृष्टि होती है। चलो चलो आगे चलो। ठाकुर सेज आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ कर्मा। उन्होंने कहा ना महाराज, कपाल मोचन ठाकुर। तो महाराज जो भक्त के जो कर्म होते हैं, प्रारब्ध होता है, उसका क्या होता है? वो तो उसको भोगनी पड़ते हैं ना। हाँ तो वो सबको भोगने पड़ते हैं। जी जी जी। तो लेकिन किसी किसी के कर्म काट भी देते हैं, जैसे कि तो वो उनकी दादा भगवान की काली इच्छा, की वो एक उनके डिग्री। ऊपर निर्भर करता है, हम नहीं जानते। जी 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 कर्मोनाशा। जी। हमारा चलो लास्ट नेक्स्ट। क्वेश्चन महाराज, हेजियोग्राफी ऑफ ठाकुर वाज रिकॉर्डेड बाय एम ड्यूरिंग ठाकुर's लाइफ टाइम। तो उन्होंने मतलब कि कोई जो भी अवतार हुए, राम कृष्ण, उनकी किसी की हेजियोग्राफी किसने रिकॉर्ड नहीं की, वो बाद में उन्होंने कविता के रूप में लिखा है। लेकिन ठाकुर का जीवन जो है एज इट इज उन्होंने कथामृत में उन्होंने एम ने रिकॉर्ड किया है, मास्टर जी ने रिकॉर्ड किया है। तो इज इट वाई दैट ही इज अवतार विशिष्ट? इसलिए हम कहते हैं अवतार विशिष्ट है, ठाकुर अवतार विशिष्ट है। नहीं, ये अवतार वरिष्ठ स्वामी विवेकानंद ने नाम दिया है। जी जी जी। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म समरूपिणे अवतार वरिष्ठाय। तो स्वामी विवेकानंद ने अवतार वरिष्ठ नाम दिया है, इससे वो मास्टर महाशय का देना देना नहीं है। मेरा कहने मतलब ये है महाराज कि जो राम और कृष्ण की लाइफ की अथेंटिसिटी को हम नहीं प्रूव कर सकते, लेकिन ठाकुर ने जो कहा, जैसे उन्होंने जीवन अपना किया, वो तो एज इट इज रिकॉर्डेड है। तो ये एक खास बात है जो ठाकुर में है, जो बाकी अवतारों में नहीं। That is what my question. नहीं, ये तो हो गया, ये हो गया आपका, वो तो हो गया, प्रश्न हो गया, ऑथेंटिसिटी है। नहीं, जहाँ तक अवतार वरिष्ठ का प्रश्न है, वो स्वामी अलग विवेकानंद ने कारण है। नाम दिया है, इससे उसका लेना देना नहीं है। जी महाराज, ऑथेंटिसिटी नो ऑथेंटिसिटी कोई लेना देना नहीं, ठीक 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 उसको मिलाओ नहीं, दोनों को मत मिलाओ। ठीक ठीक है महाराज, ठीक। प्रणाम महाराज, प्रणाम। चलो चलो रीता विश्वास। ये जी अरे करेक्ट ठीक करो, कट 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 हो रहा है। Can you hear me, Swamiji? Yes, 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 that's right. So my first question relates to chapter 13, page 314, para 7. This is if we could actually absorb the gospel, all our worldly desires would quickly dissipate. But it is not easy. We read the gospel, remember some of his words, some parables, but assimilation and absorption does not take place. Why? Kindly explain how to absorb even a small portion of the gospel. You do it, that is for you. Yes, Because Swamiji. you have read it. Yes, I guess, shall I read what I have been thought about this and involved in samsara? We are unable to
break away from sensory perceptions. Hence, Hey Baba, assimilation. we read, try to practice one or two precepts which you get there. Okay, Whatever okay, sir. you read, Yes. just one or two things you have to practice in life. No one Yes. does it. We go on reading it and we forget next moment. We don't Oh. practice anything. Yes, yes, Then why do you Swamiji, ask that this is question? correct. Then my second question, which I reworded and sent because it was not going. The actual question is chapter 13, page 316, para 1. The Gospel says, the author states, the Gospel of Ramakrishna has the power to develop a strong discriminative faculty and protect the mind from weaknesses and temptation. How to take help of the Gospel to develop strong discriminative faculty? And how to, frankly, you see, discrimination develops by, remember, discrimination develops by vichar. विवेक विचार के द्वारा विवेक होता है. Discrimination means विवेक. That will develop by vichar. Frankly speaking, we don't want spirituality. And we don't want to change ourselves and our habits. Remember. Yes. Throughout the life, someone has a habit of taking 20 or 15 bitter pan khane ka. Throughout the life, they will keep that habit. They will not change a single thing and then say, how do you do? How can I do? How can I do? We don't want to change at all. We go read it, next moment we forget. We don't make a plan of spiritual life. We don't plan to change. Yes, Swamiji. The second question is how to help take help of Gospel when mind is weak and facing temptations. You see, same thing. Vivek, getting mentally detached from the world. And what is that question? How to take help of Gospel when mind is weak and facing temptations? Kindly explain. See, Sadhu, in Vivek, the Gospel itself, it is told that you go into satsanga. ठीक है नहीं? नित्य विवेक करो, साधु संग करो. We constantly remain in our own world. Same effects is produced. I know I am living in this ashrama, and I also remember when I used to live in the world and go to ashrama. What a great difference it is. Yes. So you are constantly living in the same atmosphere and say how to do. Nothing will happen. Yes. You must correct, go out. Yes. Okay. Yes, Swamiji. And the third question, this also has been asked by many and you have explained. The author, chapter 14, page 316, paragraph 3 end. Author says in the last line, without longing, spiritual life lacks intensity and becomes monotonous. This is true. In life of a spiritual seeker, how to have this yearning, longing for God in such persons is ephemeral. Kindly explain how to have real yearning for God. Again, same thing, Vivek. Mental detachment from the world cannot take place without Vivek. Yes. Discrimination. Okay. Yes. Thank you, Swamiji. Thank you. Nivedita. Yes, Maharaj. I had two questions only. First is that what is the ideal way to read Kathamrita? अच्छे से बताइए महाराज, कैसे? हम लोग तो पढ़ते हैं and I am studying since my childhood. तो फिर कैसे ये, मतलब are we going in the right path? ये बताइए कैसे करना है? नहीं, क्या आपका मतलब है कि भाई हमने कथा पढ़ा तो कभी कोई ऐसा है तो हमको तो किसी ने बताया नहीं कि ऐसा ये जब करना है तो जब की मेथड बताइए कि ऐसे बैठो, सीधे बैठो,
ऐसा करो, ये सब बताया। हम्म, लेकिन कथामृत पढ़ने के लिए तो कहीं भी नहीं बताया गया कि ऐसा करना चाहिए। हाँ हाँ, मास्टर यही तो महाशय ने भी ये ये आप नहीं किया बताइए है। महाराज, आप बताइए। नहीं क्यों? और ये आका सारा जीवन निकल गया, 70 साल मिल गया, और उसमें ठीक है। 20-50 साल से जब कथामृत पढ़ रहे थे, अब पूछने का क्या मतलब? नहीं नहीं, ऐसा पढ़ रहे हैं पर ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, यही पूछ रहे हैं आपसे। नहीं नहीं, जो कर रहे हैं तो ट्रेन में जा रहे होगे तो पढ़ोगे नहीं। अच्छा, ठीक है। दूसरा भैया क्वेश्चन है। है हाँ, उससे ऐसा है, कहीं पर भी कथामृत कैसे पढ़ना चाहिए इसके कहीं कोई नहीं लिखा नियम है। कहीं हाँ, नहीं बताए। फिर क्यों ले रहे हो क्वेश्चन? यू मेक योर ओन रूल्स, खुद ही बना ठीक लो है, तुम्हारे ठीक तो। है। हाँ तुम बना लो कि भाई मुंह हाथ धो लूंगे, हाँ, ठीक ठाकुर के फोटो के सामने बैठ के बैठे बैठे ही पढ़ेंगे। ये तुम्हारे अपने रूल्स बना लो, खुद ही लो। ठीक है महाराज। ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है। अब जे ऐसा है ना कि वा, जैसे हाँ वेट 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 हाँ, वेट, बताइए। उसी तुम्हारे क्वेश्चन में अब एक और आ जाएगा। हाँ हाँ, बताइए। आजकल तो कथामृत मोबाइल फोन में भी आ गया हाँ, है, आप बोल रहे थे। हाँ। तो फिर मोबाइल फोन में भी आप उसके भी रूल बनाना पड़ेगा महाराज कैसे वैसे पढ़ेंगे। मैं सुनने से ठीक अच्छा नहीं लगता, बैठ के शांत मन से पढ़ना अच्छा लगता है, अब चलते तो जो फिरते। भी हो, मैं तो क्या करता हूँ, हाँ सामने रखता हूँ और हाँ ऑडियो से सुनता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ सामने किताब रख लिया, मैं दूसरा हाँ। मोबाइल फोन में है उसको रख लिया, और हम्म, ऑडियो से सुनता हूँ, मैं दोनों कर। ठीक है। अब जैसा भी अब चाहो करो। ठीक है, सेकंड दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न है। दूसरा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मतलब ऐसे में हाजरा महाशय का ये नहीं, व्हाई डिड मास्टर स्नैच अवे द रोजरी फ्रॉम हाजरा? वो क्या पढ़ो ना उसको, ये उसको मेरे को पूरा। खाली इतना पूछने का कि जो हम माला जब माला में करते, दैट इज राइट और रॉन्ग, ये खाली पूछने। नहीं उसमें रॉन्ग क्या है? गुरु ने ही तो बोला है, हम लोग पूछते हैं, पूछ सकते हैं, हम्म, तो उसमें रॉन्ग कहाँ है? रॉन्ग तो नहीं, हाँ यही बोले। वो छीन ली ना माला। नहीं माला नहीं, ठीक है। लेकिन वहां पे वो पढ़ो ना उसको, क्या है? हाँ, पेज 324। हाँ पढ़ो। वो छीन लिया कि भगवान के देखो सामने रोजरी की जरूरत क्या है। देखो देखो देखो, 324, हम्म मास्टर returned from Kali temple, snatched the rosary from Maharashtra's hand, threw it away. हम्म हम्म, Then he said, why do you tell your beard here? तुम यहाँ पे क्यों कर रहे हो? हाँ हाँ, अब मैं तो बैठा हूँ तुम्हारे सामने। महाराज सब तो अरे जो भगवान को नहीं जिसका जान सकेंगे। जिसका जिसको साक्षात्कार करना है वो तो सामने बैठे हुए हैं, अब तुम जो साधना क्यों कर रहे हो? ओके। पर वो तो पहचान में नहीं पा रहे हैं, बस हाजरा महाशय, हाजरा महाशय पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ठाकुर यही तो बार में बताने चले गए थे कि हाँ, इसको हटाओ, मैं तो अच्छा। सामने बैठा हुआ हूँ, पहचानो मुझे। हम्म महाराज यही एक तरह बताने से चाहते वो हैं। फिर ठाकुर आगे बोलते हैं, many हम्म, people in Calcutta are repeating mantra with a rosary, हाँ some for हाँ, 20 ये years, some 25, but हम्म, what are they achieving? Without longing one cannot achieve anything. Seeing हाँ, this place, देखो ये भी कह, seeing this place यानी meaning himself, one can have awakening of consciousness. ये ठीक। आंसर खुद ठाकुर ने दिया है मास्टर महाशय की रोजरी को हटाने। हम्म, जी। बिल्कुल क्लियर तो दिया है। ठीक है। अब ठाकुर जब सामने बैठे हैं तब क्या हम्म तो महाराज करो? इसमें दो, महाराज इसमें इसके मतलब दो एस्पेक्ट हैं। पहला तो ठाकुर इज रिवीलिंग हिमसेल्फ, एंड सेकेंडली ही सेइंग कि द पर्सन मस्ट हैव यर्निंग। ये दो चीजें बता रहे हैं ना। अब भाई ये देखो, कमेंट करेगा ना, रोज कोई कोई कमेंट करता रहे। यहाँ ठाकुर बोल रहे हैं क्या ना, इसका पूरा यहाँ पे जो वर्णन है पूरा का पूरा दिया हुआ, हम्म आंसर दिया। Why you tell you repeat? So many people do for 20 years, nothing happened. Without हम्म, longing, longing भी है, और उसके एक बाद लॉन्ग। में कि मैं यहाँ सामने बैठा हुआ हूँ। जी महाराज। ठीक है, हो गया निवेदिता? ठीक है महाराज। हाँ, अच्छा, सेवा अपना महाराज मालिक मेरा प्रश्न नहीं पूछा। हाँ आ कौन जाओ। बोल रहा है? मैं मेरे इतू को तो बोल नहीं रही मिला। हूँ। पूछो 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 पूछो, मेरे को नहीं मिला।
मिला है आपको, मंडे को ही मिल गया, आपने मेरे पास आंसर नहीं दिया है, तो था। बोलो बोलो, मेरे को तो नहीं मिला। अच्छा, मेरा प्रश्न है, the gospel of Sri Ramakrishna came directly from M's diary. He said, sometimes I meditated on one scene over 1,000 times. Sometimes I had to wait for a word of the master like a chatak bird. So what my question is this: what M wanted to express here? Why he had to meditate so many times? Was it to understand Sri Ramakrishna on that particular scene? And why to wait like Chatak? Please explain. Because he wanted कि भाई मैं जो बोलूंगा ये सबके पास जाएगा, कहीं गलती नहीं होवे, यानी ठाकुर के एग्जैक्ट चीज होनी चाहिए। अगर मैंने गलती कर दी तो पाप लगेगा। People will get wrong impression, people get wrong message, which I cannot, I will be responsible. So he was very, very particular. And he was also very particular कि inner meaning क्या है उसका, so that people can get that. That is the point. That's why he was very, very particular. He meditated on it very carefully. Okay. So two reasons were there. First is for himself, so that he may imbibe the meaning. And second is that the meaning goes to the people must be correct. Okay. Okay? जी, Okay, प्रणाम महाराज। हाँ, एक ही प्रश्न था। हो गया? जी। मालिनी? हाँ जी स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। You see, you must send the question clearly and in time. Yes स्वामी, this I sent very beginning में। नहीं, आपने मेरे आपके क्वेश्चन तो नहीं मिले मुझे। नहीं स्वामी जी, ये तो अनरिलेटेड टू, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस टेक्स्ट। वो जो लास्ट टाइम को क्वेश्चन नहीं पूछा था तो मैंने आपको लिखा था, तो आपने बोला पूछ लो। अच्छा ठीक है ना, पूछो। कर्म योगा पे I'll just read. Yeah, it has nothing to do with the class. Quickly Not to, no, not to do with the class. Then we suppose we do it directly between one and you and me. That will be great. No, Swamiji, Swamiji, this will benefit everyone because this is a point which you should comment on. Yes, yes. I'm reading this portion from Karma Yoga of Swamiji. Karma Yoga, therefore, is a system of ethics and religion intended to attain freedom through unselfishness and by good works. The Karma Yogi need not believe in any doctrine whatsoever. He may not believe even in God. He may not ask what his soul is, nor think of any metaphysical speculation. He has got his own special aim of realizing selflessness, and he has to work it out for himself. Now, here's the question. Here, Swamiji has redefined Karma Yoga and the Shastras as pure unselfishness, even opened Karma Yoga up for those who do not believe in God. Now, this is not according to the Shastras. Please comment, Swamiji. No, why? Buddha, Bhagwan Buddha, he did not believe in God. Yes, but our Shastras, yes. And the whole of Buddhism, yes, he has established Buddhism only on unselfishness. Yes. So why should there be any difficulty? No, I wanted you to comment on it, that this Swamiji has done something. This is very simple. There is no question about it. Unselfishness is very, very important. If you believe in God and if you are selfish, nothing will happen. That means even because normally we associate Karma Yoga with God. Don't make your comment. Okay. Go to the second question. That's the only question. Okay. Yes, So I want. Yes, Swamiji, thank you.
रामकृष्णार्पणमस्तु। ठीक, प्रणाम ओके। महाराज।